السلام علیکم ناظرین، آپ کو میری جانب سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ ہمارا سفر اور ہمارا آج کا پروگرام شروع ہوا چاہتا ہے۔ مزید تفصیلات اور مہمان کے بارے میں انشاءاللہ سفر میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ سفر بہت لمبا ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مزید بات کرتے ہیں، ابھی چلتے ہیں۔ سیر جنگ دا میڈا پیر جنگ دا میں مرید جنگ دا میڈا پیر جنگ دا سونا پیر جنگ دا سچا پیر جنگ دا اس آقا دے صحابہ اتے جان دتی ہے، اس آقا دے صحابہ اتے جان دتی ہے، رب سونے میرے پیر نو کیا شان دتی ہے، رب سونے میرے پیر نو کیا شان دتی ہے، میرا پیر جنگ دا میں مرید جنگ دا میرا پیر جنگ دا سونا پیر جنگ دا میری سوچ جنگ دی میری سوچ جنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج کا ہمارا دن جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت علامہ پیر محمد مسرور نواز جہنگی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ رہے گا، تو ہم تفصیلی ان کے ساتھ ملاقات بھی کریں۔ ان کے لیے ان کا ایک منفرد انداز سے ان کی زندگی کے حال احوال اور پوری زندگی جو ایک ان کے معمولات ہوتے ہیں تمام ترتیب جو ہے انشاءاللہ شامل کریں گے۔ ہمارا سفر کیونکہ بہت طویل ہوگا، رات کے پہر ہم شروع ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے ہم واپس حضرت کے ساتھ ہی واپس بھی آنا پڑے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں انشاءاللہ، اب ہمارے ساتھ رہیے گا، امید ہے کہ آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا۔ میرا پیر جنگ دا سونا پیر جنگ دا میری سوچ جنگ دی میری سوچ جنگ دی میں اسیر جنگ دا میرا پیر جنگ دا میں مرید جنگ دا میرا پیر جنگ دا سونا پیر جنگ دا سچا پیر جنگ دا میں عشق صحابہ دی پلائی مرشد میں عشق صحابہ دی پلائی مرشد جن بعد سانو خبر نہ کائی مرشد جن بعد سانو خبر نہ کائی مرشد میرا پیر جنگ دا میں مرید جنگ دا میرا پیر جنگ دا سونا پیر جنگ دا میری سوچ جنگ دی میری سوچ جنگ دی میں اسیر جنگ دا میرا پیر جنگ دا میں مرید جنگ دا میرا پیر جنگ دا سونا پیر جنگ دا سچا پیر جنگ دا ساڈا پیر حق نواز ساڈے سراں دا ہے تاج ساڈا پیر حق نواز ساڈے سراں دا ہے تاج ہے عظیم تاندا راج تو وفاواں دا رواج ہے عظیم تاندا راج تو وفاواں دا رواج میرا پیر جنگ دا میں۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اور آپ رمضان سے ہی دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ ہمارا اس دفعہ کا پروگرام ایک ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن اس سے پہلے میں حضرت سے معذرت چاہوں گا کہ ہم راستے میں رش بھی تھا عید کی وجہ سے ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے، تو اس کے لیے آپ سے میں معذرت خواہ ہوں کہ ہم نے جو وقت طے کیا تھا تو تھوڑا بہت لیٹ ہو گیا۔ البتہ ہم گفتگو کا ہمارا جو سیگمنٹ ہوگا اب وہ مختلف ایک اس طرح کا ہوگا کہ ہم پورا دن ان کے ساتھ گزاریں گے اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی جانیں گے اور ان کے ساتھ سفر بھی کریں گے اور اس کے ساتھ کافی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو میں سب سے پہلے تو پھر ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے دن آپ نے پورا ہمارے لیے نکالا اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویلکم۔ اچھا علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آغاز کرتے ہیں تو یقیناً دیکھنے والے یہی جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو ابتدائی دور یعنی کہ آپ کی پیدائش کہاں پر ہوئی اور اس کے بعد آپ کا جو تعلیمی سلسلہ تھا، کیونکہ آپ کے سر پر والد کا سایہ نہیں تھا، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میری پیدائش جھنکی ہی ہے اور میری ابتدائی تعلیم بھی جو ہے نا وہ بھی جھنکی ہے۔ باقی میں نے تقریباً جو ہے سرگودا یونیورسٹی کی طرف سے گریجویشن کی ہوئی ہے اور درس نظامی جامعہ محمودیہ جو ہے والد صاحب کا جو ادارہ ہے
उससे मैंने दर्स निज़ामी मुकम्मल किया। अच्छा, आपने आगे कोई तालीमी सिलसिला ग्रेजुएशन के बाद जारी रखने का सोचा या कुछ ऐसा? उसके बाद ज़िंदगी कोशिश तो जारी है कि आगे कुछ या इस वाले से मुशावरत भी जारी है दोस्तों के साथ कि आगे इसको कंटिन्यू करें, लेकिन फिर मसरूफियत ऐसी है कि उसके साथ एजुकेशन जो है ना वो उसको मज़ीद इंशाल्लाह कोशिश है, अगर कोई मौका मिला तो ज़रूर आगे जो है ना बढ़ाएंगे। अच्छा, आपने जैसे आप माशाल्लाह आलिम भी हैं, तो सिर्फ बयानात किताबत का सिलसिला आपने जारी रखा या कहीं पे दर्स व तदरीस भी करते हैं? जी, मैं पढ़ाता हूँ जामिया महमूदिया में, एक सबक जो है ना वो मुस्लिम शरीफ का। अच्छा, माशाल्लाह। वो जामिया महमूदिया में एक दर्स होता है, उसकी एक तकरीब बनाई हुई है, जितने चूँकि उसके साथ एक ताल्लुक़ रहना चाहिए तालीम व ताल्लुम के साथ, वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी। अच्छा अल्लामा साहब, ये तो बड़ा मुश्किल आपके लिए नहीं होता होगा, साथ साथ आप किताबत के साथ ये सब पढ़ाना मुश्किल नहीं होता होगा आपके लिए? चल जाता है, अल्लाह पाक मदद व नुसरत फरमाते हैं, निज़ाम चलता रहता है। अच्छा अल्लामा साहब, इसके साथ साथ आपकी एक तो मसरूफियात हमें जो वाज़ेह तौर पर मालूम है, सियासी आप ज़्यादा मशगूलियत इन दिनों काफ़ी रखते हैं, तो उससे हट के भी कोई आपका मसला है या बस सियासत पर ही फिलहाल? सियासत के अलावा जो है ना जो जामिया के मामलात को भी मैं देखता हूँ, जामिया महमूदिया के दर्स भी है, उसके अलावा पूरे मुल्क के अंदर तबलीगी असवार भी होते हैं, और उसके साथ साथ अपने जो काम वगैरह हैं उनको भी देखते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन जैसे वक्त मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी मसरूफियात के साथ वक्त अच्छा गुजर रहा है। बड़ी मुश्किल बात है कि आप मतलब मुझे तो ये हैरानगी हुई कि एक ऐसा बंदा जो खतीब भी हो, साथ मुदर्रिस भी हो, फिर साथ सियासी भी हो, साथ फिर अपने पूरे इलाके अहल व अयाल की भी सारा उसके बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत सुनकर खुशी। अच्छा अल्लामा साहब, अभी आप क्योंकि इलेक्शन भी करीब आ चुके हैं, तो इन इलेक्शन में आपकी क्या तरीक़ाकार होगा और किस अंदाज से आप इस दफ़ा आना चाहेंगे? इंशाअल्लाह उस सिलसिले में मुशावरत जारी है। मैंने आपको दूसरे इंटरव्यू में आके बात आई भी थी आपके साथ, तो इंशाअल्लाह उस सिलसिले में मुशावरत है। इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ना है, ये फाइनल है। तो बाकी चीज़ों पर अभी हमारी जो कमेटी है उसकी मुशावरत भी जारी, तो इंशाअल्लाह उसका जल्द फैसला जो है हम सुनाएंगे। अच्छा अल्लामा साहब, आप पिछला इलेक्शन आप जीते तो बज़ाहिर ऐसा था कि आपको जमात की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट थे, तो आप जमात में थे, तो इस दफ़ा ऐसा है कि आप एक तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में आपने एक तहरीक का आगाज़ कर लिया, तो इस दफ़ा आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इलेक्शन? नहीं, इलेक्शन मुश्किल नहीं होगा। हम जंग के बासी हैं, जंग के रहने वाले हैं, एक मुद्दत वहाँ गुजरी है, लोगों के साथ हमारे रिलेशंस भी हैं, फिर उनके साथ मोहब्बत भी है, फिर वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ लोग उनको चाहने वाले हैं और बेशुमार चाहने वाले हैं, और वहाँ का जो माहौल है शुरू से ही वो एक वालिद साहब के साथ अकीदत का एक सिलसिला लोगों का कायम है। उसके अलावा पहले भी जो इलेक्शन था वो भी उसी तर्ज के साथ था और इंशाल्लाह आइंदा भी उसी के साथ होगा, कोई ऐसी बात नहीं। सलाम से बीत का दिन है और बस बात निकलते निकलते आगे, तो ये जो आपके मामलात चल रहे हैं, इख्तिलाफात चल रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में नहीं होने चाहिए। इसकी ऐसी क्या वजह है कि जो इतना तवील हो गए और इसका कोई आखिरी एंडिंग पॉइंट नज़र नहीं आ रहा? क्या ये आया आपकी तरफ से ऐसा हो रहा है या तो जो मुत्तफ़िका जमात है उसकी तरफ से है? नहीं, मुझे तो ये नज़र नहीं आई कि कहीं को मुत्तफ़िका, जो आप कह रहे हैं मुत्तफ़िका जमात, मुझे तो हर जगह मुझे देखें नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आप ये देखें जो बात आपने की है ना वही बात है। जैसे मैं पहले हिस्सा था आप कह रहे हैं, अब नहीं हूँ आप कह रहे हैं, इसी तरह हर जगह मुझे तो हर जगह मुंतशिर नज़र आ रही। आप मुत्तफ़िका कह रहे हैं, कहाँ मुत्तफ़िका है? हर दूसरे दिन उन्हें बताना पड़ता है, हर दूसरे दिन लोग खड़े होकर कहते हैं जी हमें एतमाद है, कुछ कहते हैं हमें बदएतमादी है, बल्कि लोगों से अब तो इस हालत में हैं कि मुझे ये भी मालूमात मिली है कि कुछ लोगों को उनके घरों में जाकर उनको मजबूर करके उनसे बयानात, वीडियो बयानात लिए जाते हैं कि जी आप कहें कि जी हम आपके साथ, मतलब इस हद तक तो कहाँ मुत्तफ़िक है? मुझे तो सारी मुंतशिर नजर आ रही समझते हैं, मतलब इसके ग्रुप बंदी है, अलग अलग हैं, अलग अलग है बंदी की हुई है बीच में ना। हमने जो की है हमारी जो ग्रुप बंदी है, आप जिसको ग्रुप बंदी कह रहे हैं वैसे वो ग्रुप बंदी नहीं है, एक एहतजाज है। हमारा एहतजाज ये है कि इस ग्रुप बंदियों को ख़त्म किया जाए, जो ये अपनी ज़ाती
जमात बनाई हुई है, ज़ाती नहीं, उसको इज्तिमाई बनाया जाए। ये किसी की ज़ाती नहीं है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई। ये असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़, उनकी नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमीर अज़ीमत अल्लामा हकीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई थी। ये मुत्तफ़िका जमात है, पूरी उम्मत मुस्लिमा की मुत्तफ़िका है। तो इसको घर की जमात बनाने की बजाय इसको अवामी जमात बनाया जाए। अब इसको घर की जमात बनाया जा रहा है, मनपसंद लोग लाए जाते हैं, उनको नवाजा जाता है, मनपसंद जगहों पे जाया जाता है। फिर उसके अलावा सारे मामलात इस तरह के हैं। ये उसूलों की लड़ाई है, ये उहदों की या इन चीज़ों की लड़ाई नहीं। आप ये कह रहे हैं कि ये मनपसंद है, तो देखा ये गया कि ये बज़ाहिर ये जो सारे ग्रुप बंदी हुई जो भी हुआ, तो ये जहाँ तक हमारी मालूमात हैं गलत भी हो सकती हैं। उसकी इस्लाह के लिए आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपको जंग की सीट नहीं दी गई, तो उस वजह से उसके बाद आपने बहुत तवील मुशावरत के बाद लायामत तय की, तो क्या ऐसा भी है? वैसे आपने ना बड़ा खूबसूरत सवाल किया है, और मैं आप जैसे जो है आदमी से ये सवाल मुतवक्के भी रखता था कि आप ये करेंगे, और ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। असल चीज़ ये है कि 2016 का मैंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था, और वो भी उस वक्त लड़ा था जिस वक्त मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी जो है वो नाअहल हो गए थे। उनकी नाअहली के बाद मैंने वो इलेक्शन। अच्छा, आपका पहले इरादा नहीं था? नाअहली के बाद? नाअहली के बाद मैं इलेक्शन लड़ा था, मैं पहले से कैंडिडेट नहीं था, तो वो उनकी नाअहली के बाद मैंने वो इलेक्शन लड़ा था। हम पिछले 30 साल से, जब से मैं कह लें कि अब देख लें 1991 से, और मैं ये ऐसे आप समझेंगे यार उस वक्त आप 2.5-3 साल के थे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? तो 1991 से आप जमात की कैंपेन कर रहे हैं। तो 1991 से मुझे स्टेज पर लाकर यूँ दिखाया जाता था कि ये मौलाना नमाज का बेटा है, उसकी वालदा ने हमारे साथ भेजा है, ये जो है ना जी हमारी कैंपेन के लिए आया है। तो हम तो पिछले 30 साल से कैंपेन ही कर रहे थे। उस वक्त मुझे मौका मिला, कामयाबी हुई, मैंने एक तवील मेहनत की और उसको पूरे मुल्क ने देखा। और मेरी मेहनत भी इसलिए थी कि एक पिछले 15 साल से जमात को MNA की नशिस्त नहीं मिल रही, तो हम मेहनत करके MNA की नशिस्त हासिल करें। जो मेरे पास आया मैंने उसकी खिदमत की, उसका काम किया, उसके साथ किया। अगरचे मैं अपोजिशन में था, लेकिन मैंने अपने लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अपोजिशन में। उनको यही महसूस होता था कि वो हुकूमत में। उन्होंने जो मुझे काम कहना है, मैं उसके लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार करता, उनका काम करवा कर उनके हवाले करता, खुद चाहे उस अपोजिशन को भुगतता रहा। तो इस हवाले से ऐसा जो है ना जी वो मतलब एक बड़े अच्छे तरीके के साथ मैंने वो जो है ना जी इलेक्शन लड़ने के बाद भी उसको इतना अच्छा लेकर गया कि उसका रिजल्ट 2018 में जंग की अवाम ने जमात को दिखा दिया। अब 2018 में मेरे साथ साजिश हुई, ये जमात का फैसला नहीं था, मेरे साथ साजिश की। अब देखें, जब 2016 के अंदर मेरा फैसला किया गया तो उस फैसला करने के लिए 300 अफराद को इकट्ठा किया। साजिश किसकी? मैं आपको बता देता हूं ना, 300 अफराद को इकट्ठा किया। 300 अफराद में इलाकाई काउंसलर भी थे, जमात के जिम्मेदारान भी थे, और तमाम जमात के यूनिट भी थे। यानी 300 अफराद इकट्ठा करके मेरा फैसला किया गया। और जब 2018 का इलेक्शन का फैसला किया जा रहा है तो वो 12 अफराद के दरमियान हो रहा है। कहां 12 और कहां 300? 12 और 300 का डिफरेंट आप देख रहे हैं। फिर उसमें जब वो 12 अफराद के दरमियान वो एक फैसला कर दिया गया, उसमें जो तरीकाकार इख्तियार किया गया। जमात के थे या कोई वहां जंग की आवाम? मकामी जमाती जिम्मेदारान, मकामी जमाती, मतलब जमात के? हाँ। उसके बाद फिर जमात ने एक मरकजी कमेटी बनाई जिसमें मौलाना औरंगजेब साहब, शेख तसद्दुक हुसैन साहब और मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी साहब, ये 3 अफराद फैसलाबाद आए, मुझे भी बुलाया और दीगर 2 अफराद जो हैं उनको भी बुलाया। और इन्होंने एक मुत्तफिका फैसला ये किया कि मसरूर नवाज, जमात का फैसला जो था वो ये था कि मसरूर नवाज MPA का इलेक्शन लड़ेगा। ये औरंगजेब साहब मौजूद हैं, तसद्दुक साहब मौजूद हैं, अब्दुल खालिक रहमानी साहब मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि जमात ने उस वक्त मेरा फैसला किया। और मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब ने अपनी फेसबुक ID पर ये तहरीर लिखी, उस वक्त लगाई कि जी आप परेशान ना हो, जमात के फैसले का इंतज़ार करें, जो जमात का फैसला होगा, जमात की कमेटी इस पर बन गई है, जो वो कमेटी फैसला करेगी वो मुत्तफिका होगा, उसे तस्लीम किया जाए। लेकिन जो फैसला उन्होंने किया उसको फिर तस्लीम नहीं किया गया। उसके बावजूद
ہم نے جماعت کو انتشار سے بھی بچایا، اختلاف بھی نہیں کیا، خاموشی بھی اختیار کی. جو کہا گیا شہیدوں کے لیے کیا جائے گا، عسکروں کے لیے کیا جائے گا، ایسا کچھ نہ ہوا. بلکہ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی آتی رہیں جس میں میرے ساتھ کچھ ناانصافیاں اور زیادتیاں شروع ہوئی. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ بات مکمل ہونے دیں کہ وہ ناانصافیاں اور زیادتیاں ہوتی رہیں، جس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جنگ کی سیاست میں آنے والے جو اس وقت 18 میں ظاہر سی بات ہے ہمیں 23 کا تو آپ دیکھو جب بھی آ جاتا ہے جیسے آتا ہے انشاءاللہ، تو ہم نے اس کے بعد یہ تیار کیا کہ ہم الیکشن لڑیں گے. یہ اس کے بعد ہم نے پروگرام بنایا جب ہمارے ساتھ مسلسل زیادتیاں شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد مسلسل جن لوگوں نے فیصلہ کیا تھا وہ بھی قائم نہ رہ سکے. وہ میں نے ان سے یہ کہا بھی، میں نے کہا کہ آپ کم سے کم سنا دیتے، پھر مجھے کہہ دیتے کہ یار آپ مان جاؤ. آپ یہ تو کہتے نا کہ جماعت نے یہ فیصلہ کیا تھا اور متفقہ کیا تھا. اچھا علامہ صاحب، یہ 2-3 باتیں آپ نے بیچ میں ایسی کی ہیں کہ جن کو واضح کرنا بہت ضروری ہوگا. ایک تو یہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اسیران کے لیے، اور کچھ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ جب تھے، آپ نے تو 1.5 سال کا عرصہ گزارا، اس 1.5 سال میں آپ نے کیا کیا عوام کے لیے، اسیران کے لیے؟ آپ نے اس سب کون سی ایسی پیش رفت کی کہ جس بنا پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے 4 سال میں کچھ نہیں کیا؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. آپ میرے سوال کو نا جواب کو غلط پیش کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ یہ کام ہم کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا رہا. لیکن میں اس کا حصہ تھا، اس کا پارٹ تھا جماعت کا، اور جماعت یہی بتاتی آ رہی تھی نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کریں گے. اور میرے ٹائم کے اندر آپ جنگ کے اندر سے کسی بھی ایسے ورکر کو لیں جو جماعتی ہو، اور اس کے علاوہ جو اسیران ہیں دیگر، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا، کیا برتاؤ تھا اور کیا ماحول تھا، اور آج وہ نالاں ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ کسی وقت کہیں گے تو آپ کی ان سے ملاقات بھی کروا دیں گے کہ وہ آج نالاں ہیں یا راضی ہیں، اور ہمارے ٹائم پہ کیا پوزیشن تھی اور آج کیا پوزیشن. اگر آج جماعت فیصلہ کر دیتے کہ آپ کو دوبارہ سیٹ دے دیتے ہیں، پھر آپ کا کیا فیصلہ؟ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات واضح کی ہے کہ جنگ کی سیاست جو ہے وہ اس اختلاف کا حصہ نہیں ہے. اس پر ہمارے ساتھ بے شک بات ہی نہ کی جائے، ہم اس پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ میدان دیکھیں وہ میدان موجود ہے، وہ لڑنے کھلا میدان ہے، ہر ایک کے لیے جمہوریت ہے، آزاد ہے. سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آخر مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ تو دیکھیں نا، مسئلہ اصولوں کے اختلاف ہے. آپ نے خود کہا یہ منتشر نظام ہے جو چل ہی نہیں رہا. جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا اس مقصد پہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہے، وہ مقصد نظر ہی نہیں آ رہا، دور دور تک منزل نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ امیر عزیمت نے یہ جماعت جو تھی جس کو سپاہی صحابہ کہا جاتا ہے، یہ عزیمت کے لیے بنائی تھی کہ رخصت کے لیے بنائی تھی؟ عزیمت کے لیے بنائی تھی، رخصت کے لیے تو نہیں بنائی تھی. رخصت کے لیے دیگر تحریکیں اور تنظیمیں موجود ہیں نا، تو رخصت اختیار کرنے والے ادھر جائیں نا. عزیمت کی جماعت میں آئے اور بات عزیمت کے الٹ کرتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اصول پر تو چلنا چاہیے نا. آپ اگر درمیان میں کے رہ کر تو آپ اس کو حل نہیں کر سکتے تھے، یا آپ کو یہ تحریک چلانا بہت ضروری تھا؟ اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کی اس تحریک کی وجہ سے تمام افراد جو ہے نا کتنے احباب ٹوٹ چکے ہیں، کتنے منتشر ہو چکے ہیں. تو آپ کے بقول پہلے ہی منتشر ہیں، لیکن میرے بقول ہے کہ اب مزید منتشر ہو گئے، تو میرے خیال میں نقصان نہیں ہو گیا مزید. جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ اندر بیٹھ کر بات کرنے میں، پہلی بات تو یہ کہ اندر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے. جو ان کے خلاف بات کرتا ہے نا وہ ممبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بہت آواز ہے، سن تو لینا، وہی آواز تو لگا رہے ہیں نا، وہی لگا رہے ہیں نا. اندر بیٹھ کر وہ بات کرنے نہیں دیتے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2018 کے الیکشن میں جب میں نے مخالفت بھی نہیں کی، کسی جگہ کوئی ایک پرسن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے جماعت کی مخالفت کی. اس کے باوجود 2018 میں ہی اسلام آباد اپارا میں ایک رحمانی مسجد ہے، اس میں بیٹھ کر مجھ سے بائیکاٹ کا اعلان کیوں کیا؟ حالانکہ میں نے تو کچھ ایسا کام نہیں کیا تھا جسے جماعت اپنے خلاف سمجھتی. مجھ سے تو انہوں نے کر لیا بائیکاٹ کے لیے، اس کا اب جماعت سے کوئی تعلق نہیں. پھر جو بات آپ کریں کہ اندر بیٹھ کر بات کرنے والی، تو 2014 میں آخری اجلاس شورا کا بلایا گیا تھا. ہم چونکہ شورا کے ممبر ہیں تو شورا کا آخری اجلاس 2014 میں ہوا تھا. آج 22 چل رہی ہے، 8 سال ہو گئے. 8 سال میں شورا کا اجلاس ہی نہیں ہوا، تو بات کہاں کی جائے؟ بات کس کو کی جائے؟
اور آپ جو کہتے ہیں کہ بات آپ جو کہتے ہیں یہ بنا دیتے ہیں، یہی تو بات ہے نا، فیس بک پہ بناتے ہیں، بس فون کر کے کہہ دیتے ہیں فلاں کو بنا دو، وہ ایک پوسٹ بناتا ہے اور لگا دیتا ہے، یہی جماعت ہے ساری تو جنہوں نے بائیکاٹ کیا تو آپ کی تحریک ان کے خلاف ہے کیا؟ کس چیز کا بائیکاٹ کیا؟ جو آپ کے خلاف جو رحمانی، میں نے تو اس وقت احتجاج کیا ہی نہیں، میں نے ابھی کر رہے ہیں نا ابھی جو نہیں اب جو احتجاج ہے وہ میرا ذات کا تو ہے ہی نہیں، ذات کا ہوتا میں 18 میں مقابلے میں الیکشن لڑتا، ذات کا ہوتا میں 18 کے بعد احتجاج کرتا، میں باہر نکلتا، میں تو نکلا ہی نہیں، میں تو اس وقت نکلا جب انہوں نے آگے ہمارے لوگوں کے ساتھ جو جماعت کے ساتھ 30 سالوں سے چل رہے تھے ان کے خلاف جس وقت انہوں نے زیادتیاں شروع کر دی، ان کو نکالنا شروع کر دیا، ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی کہ بس ہم جو کہیں گے وہی دستور ہے، ہم جسے کہیں گے وہی سب کچھ ہے، اس کے بعد ہم تو نکلے ہیں، ہم نے تو احتجاج اس کے بعد شروع کیا۔ لیکن کے خلاف ہے، میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کا افراد کے خلاف ہے کہ جماعت کے خلاف ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، جو احتجاج ہوتا ہے نا اس کے لیے 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف ہوتا ہے، ایک احتجاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کو منوانے کے لیے، تو یہ احتجاج کسی کے خلاف نہیں، یہ اپنے حقوق کی آواز ہے، وہ آپ جس کو سمجھ لیں، آپ جن سے منوانا چاہ رہے ہیں تو کیا وہ آپ ان کو سمجھتے نہیں کہ وہ آپ کے حق مانیں گے؟ دیکھیں جی بات تو وہی ہے، جب پلیٹ فارم ہی انہوں نے کوئی نہیں بنایا، پلیٹ فارم ہے ہی نہیں کوئی، ایک کہتا ہے دوسرا بڑا ہے، دوسرا کہتا ہے وہ بڑا ہے، ایک کہتا ہے وہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتا، دوسرا کہتا ہے وہ مجھے کوئی نہیں کرنے کے دیتا، ایک کہتا ہے اختیار اس کے پاس ہے، دوسرا کہتا ہے اس کے پاس ہے، ہمیں تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا چلا کہ ان میں سے اختیار کس کے پاس ہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر نئی جماعت بنا لیں گے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، نئی جماعت بنانے کی ضرورت اسے ہے جن کی اپنی نہ ہو، ہمارے پاس تو اپنی ہے، ہم نہیں کیوں بنائیں؟ نہیں، ہماری جماعت وہی ہے جو امیر عظمت نے بنائی تھی، ہماری جماعت بھی وہی ہے، ہمارا پرچم بھی وہی ہے، ہمارا سب کچھ وہی ہے اور وہی رہے گا، ان کو پتا ہوگا، ہماری تو وہی ہے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں ہماری یہی جماعت ہے، آپ بھی کہتے ہیں ہماری یہی جماعت ہے۔ ہمارے پاس تو رائٹس ہیں، ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی رائٹ ہے تو آپ بتا دیں، یہ کہنے کا رائٹ ان کے پاس ہے تو وہ بتا دیں۔ دیکھیں جی وہ رائٹ یہی ہوتا ہے نا کہ یا وہ حسبن نسبن ان کا تعلق ہو یا ان کا جو ہے روحانی تعلق اس درجے مضبوط ہو، تو دونوں میں سے مجھے وہ کوئی چیز بتا دیں کہ روحانیت ان کی امیر عظمت سے اتنی مضبوط ہے کہ وہ بالکل اسی طرز کے ساتھ امیر عظمت کی آواز لگا رہے ہیں، امیر عظمت کی طریقہ کار کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو وہ بات کریں۔ جب بات یہ کچھ نہ کچھ کہاں ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ، اس کو کچھ نہ کچھ نہیں کہا جاتا، یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ دیکھیں میری بات سنیں، پچھلے آپ اس سے اچھا جو ہے، اس سے اچھا جس طرح کا یہ کر رہے ہیں، اس سے اچھا تو علماء پہلے بھی کر رہے تھے، جس طرح کا اب ہو رہا ہے، میں امیر عظمت کی بات نہیں کر رہا، جس طرح کا اب ہو رہا ہے اس سے اچھا تو اس سے پہلے علامہ دوست محمد قریشی کر رہے تھے، علامہ عبدالستار توسوی کر رہے تھے، علامہ عبدالشکور لکھنوی کر رہے تھے، شاہ عبدالعزیز کر رہے تھے، شاہ ولی اللہ کر رہے تھے، ان کا بھی ایک طرز تھا نا۔ اس طرز کو جو لاگو کیا، پھر اس جماعت میں آ کر اس طرز کو چھوڑ کر کوئی اور طرز اختیار کرنا ہے تو بھائی ادھر جائیں نا جہاں آپ کو یہ ساری سہولیات ہیں۔ دیکھیں نا، ایک بندہ لیڈر ہو، وہ یہ سمجھے کہ میں لیڈر ہوں، میں لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہوں، میں ان کو چلا سکتا ہوں، تو اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی چیز کو خراب کرنا شروع کر دے، کسی بنی بنائی جماعت کو خراب کرنا شروع کر دے، وہ اپنی بنا لے، وہ اپنے علاقوں میں ورک کر لیں، اپنے علاقوں کو ترقی کر لیں۔ تو آپ چاہتے کیا ہیں ان احباب سے، چاہتے کیا اس جماعت سے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی تحریر تک اینڈ ہو جائے؟ اب وہ جو دیکھیں نا، پتہ کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ جن کو ہم یہاں بیٹھ کر اس انداز کے ساتھ نہیں بیان کر سکتے، وہ ساری باتیں ان کے علم میں ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہم اصولوں پر بات کر رہے ہیں، اصولوں کی بنیاد پر کر رہے ہیں کہ اس کو درست ہونا چاہیے، قبلہ ٹھیک ہونا چاہیے، منزل کی طرف تو جائیں یار، جس طریقے سے جائیں لیکن منزل کی طرف تو جائیں، لیکن منزل کی طرف راستہ ہی نہ جا رہا ہو، آپ جا رہے ہو ملتان اور کہیں ہم لاہور جا رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جانا چاہتے ہیں مکہ، لیکن آپ کا سفر جو ہے وہ جاپان کا ہو، تو آپ مکہ تو نہیں پہنچیں گے، تو ہم نے اگر مکہ پہنچنا ہے تو مکہ کے راستے پر تو چڑھیں نا، آپ راستے پہ جاپان کے ہیں اور کہتے ہیں ہم مکہ جائیں گے، تو یوں تو نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اختلاف اصولوں پر ہے، شخصیت کے خلاف نہیں ہے؟ نہیں، شخصیتوں سے کیا اختلاف ہوگا؟ تو اصول اگر ٹھیک کر دیے جائیں، شخصیات یہ رہیں، نہیں، ہمیں شخصیت سے تو کوئی اختلاف تو اصول ٹھیک کرنا۔ دیکھیں جی، کوئی بھی انسان جو ہے
اس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، تو اس بنے ہوئے سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو جماعت کا ایک طرز ہے اس کے مطابق اس کو آگے بڑھایا جائے، اس کے مطابق چل جائیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. معاملات حل ہوتے تو نکلنا ہی کیوں تھا. تو آپ ان کے پاس ایک دفعہ چلے جائیں، عوام کے سامنے آ جائے گا کہ آپ گئے ان کے پاس، آپ نے اپنے تمام تر باتیں رکھی اور انہوں نے نہیں مانا تھا. ابھی تو یہ ہے نا، ابھی تو یہ چل رہا ہے کہ آپ کی طرف سے آپ میں اس مشن کے اندر یہ صراحتاً جھوٹ ہے کہ کسی نے آپ کو اگر یہ کہا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی شدت ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں چھوٹا تو چھوٹا ہی ہوتا ہے کسی بھی درجے کا ہو، لیکن آپ کی نسبت بہت بڑی ہے ماشاء اللہ، بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں ماشاء اللہ. تو ایک چیز یہ کہ آپ کو تھوڑی سی ایک ہوتی ہے نا کہ بعض اوقات یہ بھی لوگوں کے ذہن ہوتا ہے کہ صاحبزادہ ہے تو وہ مطلب صاحبزادہ ہے تو اس کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو اگر اس چیز کو توڑ کر اور ان تمام چیزوں کو ختم کر کے آپ اگر ان کے پاس چلے جائیں اور ان کے سامنے مکمل بات کر کے، تاکہ یہ جتنا بڑا انتشار پھیلا ہے، اتنی بات مزید بڑھ گئی ہے، تو یہ کسی حد تک معاملہ حل ہو جاتا، آپ کی جانے سے ہو سکتا کچھ حل ہو جاتا. اب بات یہ ہے کہ بھائی جو احتجاج کرنے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ جن کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہوتا ہے، چونکہ مطالبات یا مطالبات ماننے کی پوزیشن میں وہ ہوتا ہے جس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، حکومتوں کے خلاف اقتدار والوں کے خلاف، حکومتوں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے نا کہ وہ پوزیشن ان کے پاس ہوتی ہے. اب پوزیشن دوسری طرف ہے، ہم احتجاج کرنے والے. ہمیشہ سے یہی قانون ہے، مدتوں سے ایسے ہی چلا رہا ہے، اور ہمیشہ ہی ایسا ہوا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا احتجاج کرنے والے میں یہ کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے، جیسے بات آپ کر رہے ہیں کہ چھوٹا یا بڑا. احتجاج میں دیکھا جاتا ہے کہ آیا آواز درست ہے یا غلط ہے. اگر ہماری آواز غلط ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ چلے جائیں، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہماری آواز درست ہے تو پھر بات چھوٹے بڑے کی نہیں، بات اصول کی اور آواز کی درست کی. اور ہماری آواز کارکنوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مدتیں اپنی جوانیاں جماعت میں لگا دی، بوڑھے ہو گئے، یعنی آئے تھے تو ان کی داڑھی بھی نہیں تھی، آج ان کی داڑیاں سفید ہو گئی، اور اتنی مدتیں لگانے کے بعد ان کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ تو کوئی حق نہیں کہ جی میری پسند کا نہیں ہے. اور پھر جو بات آپ کر رہے ہیں کہ چلے جائیں، کس کے پاس جائیں؟ تو میں نے آپ کو کہا کہ ان کے درمیان بھی یہ طے نہیں ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے، تو جائیں کس کے پاس؟ ہر جگہ تو ایک الگ پارٹی ہے، اس میں جائیں کس کے پاس؟ اور پھر ہم سے جب بھی کسی نے اگر کہا ہے تو ہم نے ان سے یہی کہا ہے کہ جی وہ مشترکہ آئیں، مشترکہ بات کریں. وہ یہ نہ ہو کہ ایک کر رہا ہے دوسرا کہ صبح وہ کہ جی میں ان منا لوں، کبھی میں ان منا لوں، یہ نہیں. اچھا ابھی تک آپ کے پاس کوئی آیا ہے اتنا، آپ 8 ماہ کی اس تحریک کو ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی آپ کے پاس ہے، آپ سے رابطے کیا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے کوئی مختلف دوستوں نے رابطہ کیا؟ اس میں سنجیدہ اور غیر سنجیدہ دونوں قسم کے جو ہے وہ پارٹیاں چلتی رہی ہیں. کچھ سنجیدہ بھی اس حوالے سے چل رہی ہیں، یعنی جو معزز ہیں، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. دیکھیں، لیکن ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ابھی تک نہ طے ہوئی ہے، نہ کوئی ملاقات ہوئی ہے جس کو یہ سمجھا جائے جس کے لیے پروپیگنڈا ہر دن کیا جاتا ہے. تو ایسی کوئی بات ابھی تک نہیں ہوئی کہ کوئی نہ طے ہوا نہ کوئی ایسی ملاقات ہوئی. باقی ظاہر سی بات ہے، مخلصین ہیں، دونوں طرف موجود ہیں مخلصین، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا معاملات کو کوئی بہتری کی طرف لے جایا جائے. اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں، ہماری قطعاً خواہش کوئی ضد یا نہ کریں. سلام صاحب، آپ کی جب دیکھا گیا کہ آپ کو تو ہمیشہ انہوں نے بہت عزت دی ہے، آپ کو تو بہت پروٹوکول دیا ہے، اور آپ کو تو ہمیشہ انہوں نے ایک قسم کا یہ سمجھ لیں کہ سروں پر بٹھایا. تو ان کو آپ سے یہ امیدیں نہیں تھی، تو آپ نے اچانک سارا ہی گیم ہی مکمل پلٹ دیا. یہ آپ میرے خیال میں یا آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے میرے بھائی، یا پھر مجھے تو نظر نہیں آیا. مجھے کہاں انہوں نے سر پہ بٹھایا ہے کہ بڑی جو ہے نا جی جو باتیں آپ کر رہے ہیں، ہم نے تو دیکھا ہے نا، کہاں آپ نے کہاں دیکھا ہے ایسا؟ کو مجھے بھی دکھا دینا. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 4 سال سے 5 سال سے بحیثیت جماعت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سال گزر گئے جو مجھے یاد ہیں، چونکہ میں مطلب جن میں کروا رہا ہوں، تو پچھلے 5-6 سال سے تو بحیثیت جماعت امیر عظمت کانفرنس نہیں کرواتے کہ جی مسرور کروائے، میں نے کرواتا رہا. پھر یہ بھی ہوا
کہ 1 साल में मैंने इनसे कहा कि चूंकि अब इख्तलाफ हो गया है, आप करवाना चाहते हैं तो आप करवा लें, नहीं तो हम करवा लेते हैं। उस साल 1 साल इन्होंने करवाई नहीं, बिल्कुल किसी ने भी नहीं करवाई। पहले मस्जिद इंतजामिया कुछ अर्सा करवाती रही, फिर मैं करवाता रहा। यानी जो जमात का बानी है उसकी कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं, उनकी याद मनाई नहीं जाती, और बात ये की जाती है जी हम मौलाना की नमाज के मिशन पर है, हम मौलाना की नमाज की बात करते हैं। अब आप यही देख लें, आपके सामने है, आप मीडिया से रिलेटेड हैं, आप मुझे बता दें 2018 भी डायरी आप उठाएं, 2019 की भी उठाएं, 20, 21 और 22 की भी उठाएं, आपको कितने अमीर अजीमत के हवाले से 22 फरवरी के प्रोग्राम आप नजर आएंगे। आप 18 की तादाद देखेंगे तो वो अलग फिगर होगा, 19 की देखेंगे तो वो अलग फिगर होगा, 20 में तो कुछ भी नहीं, कहीं एक प्रोग्राम भी नहीं किया गया। 21 में आकर जो मेरी मालूमात है, अल्लाह आलम कहीं हो, किसी के पास कोई उसकी हो, तो हमारी मालूमात के मुताबिक 20 में तो कोई जंग का भी नहीं हुआ, जब तो और कहाँ होगा, जंग का भी नहीं हुआ। लोग आए और वापस लौट गए। हमने फिर कहा कि हम अगले साल करेंगे। फिर हमने करने से पहले पैगामात भेजे तो हमें कहा गया कि नहीं जी उनके वालिद की है तो वो खुद ही करवा लें, वो करवाएं, बस वही करवाएं। हमने करवा ली। फिर 22 में भी हमने ही उसको मुनक्कद किया। तो चीज़ ये है कि जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, मैं तो आपको अगर बताऊं साल हा साल से जो ज्यादतियां होती चली जा रही, हम तो उनको बर्दाश्त करके सिर्फ चलते रहे, हमने तो एहतजाज किया ही नहीं किसी बात। इसलिए ऐसा लग रहा है कि शायद जो है वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये एक मुद्दतों से चलता आ रहा है, ऐसी बात नहीं। अच्छा अलामा साहब, ये देखा गया कि आपकी जो तहरीक है जिसका आगाज़ हुआ तो इसमें कोई ऐसे अफराद शामिल नहीं थे, आपने उन्हीं अफराद को शामिल किया कि जिनको उस जमात से निकाला गया, किसी भी तरीके से निकाला गया। तो मेरे ख्याल में आपने ये प्लस पॉइंट लेकर फिर एक इस सिलसिले का आगाज़ किया। आपने उन अफराद को तो शामिल नहीं किया कि जो जमात का हिस्सा थे या उसमें आप उनको शामिल करते, फिर आपकी आवाज़ मज़ीद मजबूत हो जाती। आपने तो मुस्तरद शुदा लोगों को अपने साथ रखा। जी, वो मुस्तरद आज हो गए, अचानक हो गए। सोचने की बात है ना कि आए थे तो बच्चे थे, निकाला तो बूढ़े हो गए। यानी जब तजर्बाकार हो गए, जब उन्होंने जमात को पूरे तरीके को समझ लिया तो फिर कहा कि जी नहीं आप फारिग हैं। फिर बात आपकी वाली वही है कि फिर अगर हम एहतजाज कर रहे हैं और आप कहते हैं जी नहीं छोटे हैं तो बड़ों को बड़ा मान लें, वो भी तो बड़ों को बड़ा माने ना, वो भी बड़ों को बड़ा मानना चाहिए ना। जिन पे बड़ों का एतमाद था उस बड़े को बड़ा माने ना, बड़ों को वो भी तो बड़ा नहीं मान रहे ना। अगर खुद को बड़ा बनवाना है तो फिर बड़ों को माने ना, वो भी बड़ों को माने जो उनसे पहले जमात में आए, उनसे पहले काम करते रहे। और फिर अगली बात यह है कि हमने जो आवाज बुलंद की है वो की उन्हीं लोगों की है कि इनके साथ क्यों ज्यादती कर रहे हो। और फिर कहते हैं ना सारे मजलूम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए, तो मजलूमों के साथ हम तो खड़े हुए हैं। सलाम सब, एक लोगों के ज़हन में एक बड़ा अजीब सवाल आता है कि आपको उन्होंने कबूल कर लिया, बिलफर्ज कबूल कर लिया, आपके मामला ठीक हो गए, ये जो मुस्तरद शुदा लोग हैं ये क्या करेंगे? ये तो आपकी वजह से इनके साथ मामला गड़बड़ मजीद हो गए, तो फिर इनका क्या होगा? या आपने बात ही नहीं समझी। आप बात समझ जाते तो ये सवाल ही ना करते कि हम निकले उनके लिए हैं, अपने मामलात के लिए तो निकले ही नहीं। जब निकले ही उनके लिए हैं तो फिर ये तो सवाल आपका बनता ही नहीं है कि मेरे मामलात की तो बात होगी बाद में, पहले तो उनके मामलात की बात होगी। पहले तो तय ये होगा, देखिए पहले तय ये होगा कि एक आम कारकुन की क्या हैसियत है, कारकुन जो है उसकी क्या हैसियत है। क्या कारकुन की यही हैसियत है कि उसको बुला लिया, उससे नारा लगवा लिए, उससे झंडा उठवा लिया और उससे चंदा करवा लिया और बस खत्म। साल में कोई तरबियती नशिस्त नहीं, साल में कोई पंफलेट नहीं, साल में कोई दस्तूर मंशूर नहीं, साल में कोई तरीका कार मुतय्यन नहीं, साल में कारकुनों की कोई दाद रसी नहीं, उनके हत्ता के गम और खुशी में शरीक नहीं होते। और गम और खुशी और हत्ता के अगर किसी के पास जानने के लिए इनको बुलाया जाए तो उससे पहले डिमांडें पहुंच जाती, उससे पहले डिमांडें पहुंच जाती। पूरे साल के असफार हैं तो ये किस वजह से आप कह रहे हैं ना तरबियत नशिस्त से कुछ भी नहीं, ये फिर क्या चल रहा है? ये जो इस सवाल का जो जवाब है ना, अगर इसका जवाब मैंने आपको दे दिया ना तो वो बहुत जो है ना जी वो और तरफ चला जाएगा। ये सवाल अगर मैं खोल दूं ना आपका, या आप इसको खुद समझ लें और कारकुन भी खुद समझ लें कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। ये जो छोटे जलसे नहीं है, जलसियां करते हैं हर शहर में 2-2 4-4, वो जो
रखवाते हैं, वहाँ के ज़िले ज़िम्मेदारान वो करते रहते हैं, सारा साल वो एक चलता रहता है। तो जलसा कभी भी जो है ना जी, जलसे में आप इश्तिहार लगाते हैं, आम पब्लिक को बुलाते हैं, वहाँ पॉलिसी तो नहीं बयान करते, वहाँ आपको उनको जो है ना, वो तो एक आपकी अवामी ताकत का एक मुजाहरा है, होता है, एक तरीका होता है कि आप अपनी बात थोड़ी सी अपने यानी साहबा के हवाले से और दीगर जो मामला हैं उनके हवाले से आप बात रख रहे हैं अवाम नास में। उसका मकसद ये कभी भी तारीखें और तंजीमें इस तरह नहीं चलती, इस तरह नहीं चलती। ये आपने जो कहा कि बड़ा सख्त इसका जवाब है, हाँ, कुछ तो ज़ाहिर बात है कि कुछ इससे मिलता जुलता कोई जवाब अगर नहीं, इससे मिलता जुलता मेरे पास जवाब है नहीं, मैं दूंगा भी नहीं, उससे मिलता जुलता है ही कोई नहीं। बात देखे ना, कुछ चीज़ें हैं वो वही बात है, फिर हम खरी कर देंगे तो वो जो है बहुत से लोग जो है ना जी, वो अकीदत में बेचारे कुछ जो है वो हो जाते हैं नाबीना, वो फिर उसको तरह तरह के रंग देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इस उन्वान को आप रहने दें, बाद में कहेंगे कि जो है हम जब इख्तलाफ ख़त्म करेंगे तो मुकम्मल ख़त्म करेंगे, हम उसको रखेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, आर्जी नहीं करेंगे, मुस्तकिल करेंगे, मुस्तकिल बुनियादों पर हम चाहते हैं कि ख़त्म होना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए एक अच्छा तरीक़ाकार मुतय्यन होना चाहिए। तो ये कोई गलत बात तो नहीं, अच्छी बात है, सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए। बस हम ये चाहते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए। तो आइंदा इलेक्शन में आप किस जमात को अपने साथ मिला के इस इलेक्शन में आगे बढ़ेंगे? वो तो जो हमें वोट देता जाएगा यार, जो मिल जाएगा हम सबको मिला लेंगे, हमें ये तो इतराज़ नहीं। देखिए सियासत में तो ये उसूल ही नहीं होता ना कि फलां को मिलाएंगे फलां, वो तो उसमें एक तरीका कार होता है। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो लोग आपकी सपोर्ट करना चाहते हैं आप उनको कहते हैं जी बिल्कुल आए, हम आपके साथ हैं, हमारे साथ चलें, हम आपके हुकूक का ख्याल करेंगे। तो यही होता है, पार्टियां लड़ती हैं आपस में, मुखालिफ भी होती हैं, इलेक्शन होते हैं, जमहूरियत है, जमहूरियत है यही। तो उसमें दो पार्टियां, एक ही घर के भी लोग होते हैं, एक दूसरे के मुकाबले लड़ते हैं। पूरे पाकिस्तान में ऐसा आप देख रहे होंगे, एक घर के अफराद हैं एक दूसरे, अभी आप यही देख लें कि अपना असद उमर साहब भी हैं और जुबैर उमर साहब भी हैं, दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक नून लीग में, एक पीटीआई में, एक नून लीग का बड़ा है, एक पीटीआई का बड़ा है, इसलिए वो ऐसी बात। अच्छा लामा सब, ईद का दिन भी है और आज जो है, तो मैं वैसे एक होता है कि लोगों को ये ख्वाहिश भी होती है और वैसे वो जानना भी चाहते हैं, और वैसे इस प्रोग्राम का असल मकसद भी होता है कि जो भी शख्सियत है उसका मुकम्मल तारुफ हो और उसके साथ कुछ अहवाल ले लिए जाए। तो आपकी जो डेली की रूटीन होती है, तो सुबह का आगाज़ आपका कैसे होता है, रात तक आपके मामूलात क्या होते हैं हर रोज़ के? असल में हमारे लिए कुछ मामलात जो होते हैं, ये रूटीन जो होती है उसको हम बदलते रहते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो इसलिए उसको मैं बयान भी नहीं कर सकता, इस तरह आपको नहीं बता सकता कि मेरी डेली की रूटीन क्या होती है। बस ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि उसमें सियासत भी है, इदारा भी है, बाकी तबलीगी असफार भी हैं, तो खिदमत खल्क का काम भी है, तो वो सारी चीज़ें कंटिन्यूसली लगातार चलती हैं। उसमें फैमिली के लिए टाइम भी निकालते हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, सारे काम चलते रहते हैं, लेकिन रूटीन को इस तरह में पब्लिकली मुस्तकिल अपनी वो नहीं बता सकता। बाकी गम खुशी है लोगों की, उसमें शरीक होते हैं। अच्छा, आपके जो बड़े भाई जो वो शहीद भी हैं, तो आप दूसरे नंबर पर हैं या तीसरे? मैं तीसरे नंबर। अच्छा, तो आपसे जो बड़े भाई हैं वो भी क्या इस फील्ड में किताबत? नहीं, वो घर होते हैं। अच्छा, तो दूसरा आप मतलब खाने में अक्सर क्या पसंद करते हैं, तो खास आपकी पसंद फरमाइश क्या होती है? कोई ख़ास पसंद नहीं, कोई फरमाइश कभी की नहीं किसी से, जो मिल जाए, जो मिल जाए खा लेते हैं। लेकिन कोशिश ये होती है कि खाने में जो मिले वो हलाल हो, पाक हो, साफ हो, इससे ज़्यादा की कोई नहीं ख्वाहिश होती। मतलब अक्सर लोगों को होता है ना कि चटपटी चीज़, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, वो कोई मसला नहीं, चटपटी मिल जाए वो भी खा लेते हैं, ना मिले साथी हो वो भी खा लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, आज का हमारा अभी मज़ीद हम गुफ्तगू जारी भी रखेंगे और उनके साथ थोड़ा बाहर भी निकलेंगे और बाकी उनके जो दोस्त अहबाब हैं उनके घर भी जाएंगे, वहाँ पर भी कुछ गुफ्तगू रहेगी और खाने का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो उसमें हम देख रहे हैं कि ये कैसा खाना पसंद करते हैं, तो वो फिर आपको बता भी देंगे। तो नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे दोबारा।
میں مرید جنگ دا میرا پیر جنگ دا وے میں مرید جنگ دا میرا پیر جنگ دا میری سوچ جنگ دی میری سوچ جنگ دی میں اسیر جنگ دا وے میرا پیر جنگ دا میں مرید جنگ دا وے میرا پیر جنگ دا سونا پیر جنگ دا سچا پیر جنگ دا اس آقا دے صحابہ اتے جان دتی ہے اس آقا دے صحابہ اتے جان دتی ہے رب سونے میرے پیر نو کیا شان دتی ہے رب سونے میرے پیر نو کیا شان دتی ہے میرا پیر جنگ دا میں مرید جنگ دا وے میرا پیر جنگ دا سونا پیر جنگ دا میری سوچ جنگ دی میری سوچ جنگ دی میں اسیر جنگ دا وے میرا پیر جنگ دا میں مرید جنگ دا وے میرا پیر جنگ دا سونا پیر جنگ دا سچا پیر جنگ دا میرا پیر ہے ضمیر دی پکار دوستو میرا پیر ہے ضمیر دی پکار دوستو تاؤں ہویا یہ صحابہ تے نثار دوستو تاؤں ہویا یہ صحابہ تے نثار دوستو میرا پیر جنگ دا میں مرید جنگ دا وے میرا پیر جنگ دا سونا پیر جنگ دا میری سوچ جنگ دی میری سوچ جنگ دی میں اسیر جنگ دا وے میرا پیر جنگ دا میں مرید جنگ دا وے میرا پیر جنگ دا سونا پیر جنگ دا سچا پیر جنگ دا میں عشق صحابہ دی پلائی مرشد میں عشق صحابہ دی پلائی مرشد جن بعد سانو خبر نہ کائی مرشد جن بعد سانو خبر نہ کائی مرشد میرا پیر جنگ دا میں مرید جنگ دا وے میرا پیر جنگ دا سونا پیر جنگ دا میری سوچ جنگ دی میری سوچ جنگ دی میں اسیر جنگ دا وے میرا پیر جنگ دا میں مرید جنگ دا وے میرا پیر جنگ دا سونا پیر جنگ دا سچا پیر جنگ دا ساڈا پیر حق نواز ساڈے سراں دا ہے تاج ساڈا پیر حق نواز ساڈے سراں دا ہے تاج ہے عظیم تاندا راج تو وفاواں دا رواج ہے عظیم تاندا راج تو وفاواں دا رواج میرا پیر جنگ دا میں مرید جنگ دا وے میرا پیر جنگ دا سونا پیر جنگ دا میری سوچ جنگ دی ہمارا سفر جاری ہے اور صبح سے ہم چلے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہماری نشست رہی تو ابھی ہم نے چاہا تھوڑا ان کے ساتھ چلتے ہیں تھوڑا انجوائے بھی کر لیں گے سفر بھی کر لیں گے یقیناً کچھ چیزیں سفر میں انسان معلوم کر لیتا ہے تھوڑا مل جل کر بات چیت کر لیتا ہے اور عید کا موقع خاص طور پر اچھا پیر صاحب یہ مجھے ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ آج اس مقام پہ اس جگہ پہ اس ایسی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں تو مطلب کیا فیلنگز ہوتی ہیں کس قسم کا مطلب انسان کو مطلب اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا اور کس حد تک آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج عزت دی آپ کس مقام پہ ہیں اللہ پاک کے کرم نوازی ہے اس کی کریمی ہے اور ہمیشہ یہی دعا رہی ہے کہ وہ صبر و شکر عطا فرمائے اور کبھی بھی کسی ایسے مغالطے میں نہ مبتلا ہو جائیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں خراب کر بیٹھے تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے ہر لمحے کہ وہ اپنی اطاعت اور اپنے محبوب کی اطاعت کے راستے پر چلائے. تو ویسے عید کے دن آپ مطلب کیا روٹین ہوتی ہے؟ جیسے بھی ہم گئے وہاں پر آپ کے ساتھ ہی تھے، لوگوں سے
मुलाकातें वगैरह, तो कोई दिल करता है कि कोई लंबे सफ़र पर निकल जाए, ईद का दिन है, खुशी मनाए, और कहीं मतलब बिल्कुल अकेले एक इस तरह का? नहीं, ये ऐसा दिल तो यकीनन करता है इंसान का। बाज़ औक़ात बंदा जो है वो एक सिस्टम में रहते हुए, जिसमें आपके लिए जो है ना जी वो हर लिहाज से जो है ना जी पाबंदी हो कि आपने जो है ना जी वो विदाउट सिक्योरिटी आप नहीं जा सकते या ऐसा नहीं कर सकते, तो दिल तो चाहता है कि इंसान थोड़ा आज़ादी, वैसे भी हमारे खून में है, तो दिल यही चाहता है कि आज़ाद होकर जो है ना जी वो वक्त गुजारा जाए। लेकिन समझते हैं, हालात को भी समझते हैं और माहौल को भी समझते हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि किसी भी चीज़ में गुलूब करने की कभी कोशिश ही नहीं की, हमेशा कोशिश करते हैं कि आप मतलब लोग भी इतने ज़्यादा आपके पास से मतलब तंग नहीं होती? ईद के दिन है, खुशी के दिन है, जरा थोड़ा रिलैक्स रहे, लेकिन फिर भी तादाद इतनी ज़्यादा लोगों की होती है। लोगों से मिलने से कभी भी नहीं तंग। अच्छा, कभी। लेकिन मैंने एक चीज़ माशाल्लाह आपने नोट की है कि मतलब सादगी माशाल्लाह आपको बहुत मतलब पसंद, इस लिहाज से यही नहीं कि सादगी में भी बहुत ज़्यादा सादगी नहीं, लेकिन सादगी की एक लिमिट है, उसमें आप रहते हैं, लोगों से मुलाकात, और मतलब आवाम बड़ी मोहब्बत करती है। तो आखिर इस मोहब्बत की वजह क्या है? वही वो जो एक कुर्बानियों की तवील सिलसिला है, और वालिद मोहतरम ने जो इतनी बड़ा काम से अंजाम दिया और इतनी बड़ी खिदमत की है कौम की, यकीनन उसकी बदौलत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि लोग मोहब्बत करते हैं। और हम भी यही दुआ करते हैं कि हम मोहब्बत करने वालों को संभाल सकें, उनके साथ कहीं कोई ऐसा रवैया ना हो जाए, कोई मिसबिहेव ना हो जाए, कोई हमसे उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। हमेशा यही कोशिश करते हैं, और उससे लोगों के साथ एक ताल्लुक अच्छा है, और वो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। अभी जो है ना सियासी मैदान में भी उतरे हैं, तो क्या अगर अल्लाह ने चाहा आप बन जाते हैं, कौमी असम्बली में आ जाते हैं, तो उसके बाद भी ये रवैया रहेगा या हटो बचाओ? अभी तो ये बात अभी तक तो ये तय ही नहीं हुआ। ये नहीं आप कह सकते, आपने जो कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया खुद से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी जो है ना जी हम चूँकि तैयारी जो है इलेक्शन की हम दोनों सीटों के हवाले से कर रहे हैं, और पैनल भी बनाएंगे यकीनन, और एक ही नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, और उसके हवाले से जो है ना जो हमारी मुशावरत जारी है, हमारी जो टीम है, हमारी कमेटी है, इंशाल्लाह उसके मुताबिक हम फैसला करके जो है ना जी वो मैदान में उतरेंगे। और जहाँ तक बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि मिलने जुलने वाली का रवैया यही रहेगा, चूँकि देखा यही जाता है कि बदल जाते हैं बाज़ लोगों के रवैये, उनके अंदाज, जब वो किसी ऐसी पोजीशन पर आते हैं। तो लेकिन मेरे लिए तो मैं चूँकि ऑलरेडी पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका हूँ, और अल्लाह पाक का शुक्र है उस वक्त भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही, और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे ही। तो वैसे आप लोगों से कैसी तवक्कुआत रखते हैं? वैसे देखा गया ना, अभी आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो बहुत माशाल्लाह आपके इस्तकबाल प्रोटोकॉल होते हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि इलेक्शन के दिनों में भी आपके साथ मतलब ऐसे ही रवैया रखा जाएगा, या तो ये कि जैसे तहरीक या कोई तंजीम चलती है और उसके बाद जब वो मैदान में अमलन जब उतरती है तो उस वक्त फिर अवाम की तादाद कम हो जाती है, तो लेकिन वो वक्त अभी आया नहीं है, लेकिन आपको कैसी तवक्कुआत है? देखिए जी, मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि मैं किसी से तवक्को नहीं लगाता, उम्मीद सिर्फ अल्लाह से कायम की जाती है और अल्लाह से कायम रखता हूँ, उसके अलावा किसी से उम्मीद नहीं लगाता। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे लोग हैं और जंग की अवाम है बिलखसूस, वो लोग हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी है, कम नहीं हुई, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम नवाजी की तो बहुत अच्छा और बहुत बेहतर माहौल होगा। अच्छा, अलामा साहब, ईद के दिन ख़ास तौर पर हर एक इलाके का जो बड़ा होता है, लेकिन आप अब बड़े इस तरह समझे जाते हैं कि आप माशाल्लाह एक बहुत बड़े वालिद के आप साहिबजादे हैं, और तो मतलब लोगों को एक तवक्कुआत होती हैं कि हमारे घर आएँ, हमसे मिलें, और मतलब एक बड़ा चाहत होती है। तो मैंने तो देखा आप आना जाना लगा रहता है, तो क्या ये मतलब हर वक्त ऐसे ही आपका रवैया रहता है पूरा साल, या तो मतलब ख़ास मौक़ों पर सिर्फ आप ऐसे इस तरह का रवैया अपनाते? नहीं, मेरा पूरा साल इसी तरह रहता है। मैं सारा साल सारा वक्त ही मैं हमेशा जो है ना जी वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोगों के दरमियान रहता हूँ, अपने लोगों से बाहर निकला ही नहीं करता। कोशिश यही होती है कि उन्हीं के दौरान ही वक्त गुजारा जाए, और सारा साल इसी तरह रहता है, और मुस्तकिल यही रूटीन है, आना जाना, मिलना मिलाना वो चलता रहता है, उनकी गमी खुशी में शिरकत करना वो इसी तरह चलता रहता है। अच्छा, आप
सियासी भी आपका सिलसिला, क्योंकि मैं सियासी इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब दिन करीब आ चुके हैं, तो आप क्या अपने जो आप समझते हैं आप अपने अंडर जितने भी अफराद हैं, तो क्या आप इसको मुनज़्ज़म करके उन अफराद को भी इलेक्शन के लिए भरपूर तैयार करें, या तो आप सिर्फ आपका फोकस एक ही जंग की सीट पर होगा? इसका फैसला आने वाले वक्त पे करेंगे कि जी इसकी क्या बेहतरीन सूरत हाल क्या निकलती है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह इसका फैसला करेंगे। अच्छा, फिर सब आप का जो ये सिलसिला रूहानी सिलसिला है, तो इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? फिर आप जब अल्लाह ने चाहा तो आप खुशी की बात होगी, हाँ ऐसे अफराद को आगे आना चाहिए, सबके लिए दुआएं रहती हैं, तो फिर आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? फिर भी ये रूहानी इतवार वाला, पीर वाला, हफ्ते वाला जो सिलसिला है, तो दम का सिलसिला जारी रहेगा? जी इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो इसको अभी आप मतलब इसको कैसे मैनेज करते हैं लोगों के साथ? मतलब आप जो दिन एक दिन मुतय्यन करते हैं, तो जैसे कि बाकी पीराने पीर हजरात जो है ना सिलसिला जारी रखते हैं, तो आपको भी वैसे सिलसिले या एक मुनफरिद अंदाज से आप इसको जो है वो, ज़ाहिर बात आपकी निस्बत बहुत बड़ी है, तो इस निस्बत के लिहाज से आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? बस जब अपनी मसरूफियात को भी देखते हैं ना, और अकाबिर के किए हुए काम को देखते हैं कि अकाबिर ने कम वक्त में इतना काम किया, तो कोशिश करते हैं कि जितना वक्त मिले उसको बेहतरीन बनाया जाए, उसमें लोगों को जितनी हम उनकी खिदमत कर सकते हैं, जितनी हम सहूलत दे सकते हैं, उतनी कोशिश करते हैं कि उन्हें सहूलत दे सकें। उसके लिए फिर उसको मैनेज करते हैं, उसके लिए तरीक़ाकार बनाते हैं, ताकि हम जो वक्त हमारे पास है उसको बेहतरीन से बेहतरीन गुजार कर आवाम की खिदमत की जा सके, अपने लोगों के काम आया जा सके, उसके साथ साथ दीगर जितने मामला हैं उनको हैंडल किया जा सके। अच्छा, हो जाते हैं। ये मुझे बताइए कि क्या आपके खलीफों में इजाज़त बनाई थी या बनाए हैं, बनाने का इरादा है? वो तो एक अगला फेज है, अभी तो मतलब जो है ना जी आगाज हुआ है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है ना आपकी भी मुरीदीन आपसे वैसे एक ही तो जैसे बाकी वो हजरात का होता है, जैसे बड़ी गद्दी नशीनें जैसी होती हैं, तो आपको भी वैसी है या कुछ आप उसमें शरीयत को भी मलूज़ खातिर रखते हैं? देखिए सबसे पहले तो है ही शरीयत, उसमें ये तो जो है वो मैं ये समझता हूँ, मैं तो किसी के बारे में भी कोई ऐसा पतन जुमला इख्तियार नहीं कर सकता जैसे आपने कहा, वरना मैं करता हूँ, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, हर एक का अपना तरीक़ाकार है, वो अपने तरीक़ेकार के मुताबिक चलता है, लेकिन मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं और मेरे साथ जितने भी दोस्त अहबाब हों, हम शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, उसी में ही कामयाबी है दुनिया की भी और आखिरत की। अक्सर लोग कहते हैं कि पीरों को तो मसला ही नहीं होता, मतलब जो चाहे करना चाहे बस दम किया और निकाल लिया, तो मतलब आपके लिए तो तकसीद मुश्किल नहीं है? ये इलेक्शन नहीं, वैसे ऐसा होता है, हमने बड़े लोग जाते हैं, तब जैसे आपने आप आजमा लेना किसी आप आजमा लें। नहीं, हमने देखा ना, इमरान खान को देखा, वो इलेक्शन से पहले जो है वो गया उनके पास और वहाँ पे जाके उसने बड़े मन्नत मांगी और उसके बाद हो जाए वज़ीर आज़म बन गया, तो ऐसा क्या कुछ है? मैं मुरीद जंग दा, मेरा पीर जंग दा वे, मैं मुरीद जंग दा, मेरा पीर जंग दा, मेरी सोच जंग दी, मेरी सोच जंग दी, मैं असीर जंग दा, मेरा पीर जंग दा, मैं मुरीद जंग दा वे, मेरा पीर जंग दा, सोना पीर जंग दा, सच्चा पीर जंग दा, उस आका दे साहबा उत्ते जान दिती है, उस आका दे साहबा उत्ते जान दिती है, रब सोने मेरे पीर नू क्या शान दिती है, रब सोने मेरे पीर नू क्या शान दिती है, मेरा पीर जंग दा, मैं मुरीद जंग दा वे, मेरा पीर जंग दा, सोना पीर जंग दा, मेरी सोच जंग दी, मेरी सोच जंग दी, मैं असीर जंग दा, मेरा पीर जंग दा,
मैं मुरीद जंग दा वे मेरा पीर जंग दा सोना पीर जंग दा सच्चा पीर जंग दा मेरा पीर है ज़मीर दी पुकार दोस्तों। अच्छा, हम इस वक्त मौजूद हैं हज़रत के साथ, हमारा जो प्रोग्राम चलता हुआ आ रहा है, अभी भी हम हज़रत के साथ ही चले और उनके आपने देखा होगा कि हर शख्स ईद के दिन अपने कहीं ना कहीं निकलता है बाहर और अवामी मुलाकात का सिलसिला जारी रहता है। तो आज भी अवामुन्नास और उलमाए कराम किसी तादाद में यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। तो जानना चाहेंगे, अब पहले तो आपने बाकी हमारी रूटीन चेक की और हज़रत का बाकी तारुफ सुना आपने, तो भी ये जानना चाहेंगे कि हज़रत आप अभी सियासी मैदान में भी उतर चुके हैं, लेकिन बज़ाहिर देखा जा रहा है कि आपके लिए बहुत टफ़ टाइम है, और इस टफ़ टाइम से आप अपने आप को इस वक्त फ़िलहाल, क्योंकि आप बज़ाहिर ऐसे महसूस होते कि आप बिल्कुल यकजा हैं, आपके साथ कोई टीम नहीं है, और मतलब आप अकेले मैदान में निकले हैं और आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और अभी बज़ाहिर मालूम ये हो रहा है कि आप जंग से कोई सीट से इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे हैं। तो ये बताएं कि ईद का दिन एक ऐसा खुशी का दिन होता है, तो उसमें बाज़ औक़ात होते कुछ बातें इंसान ना चाहते हुए भी बता देता है। तो मैं ये बस आपसे जानना चाहूँगा कि आपका अगला लाएअमल क्या है सियासी लिहाज से, आप अपने आप को इस वक्त किस मुकाम पर और किस हैसियत से किस जगह पर समझते हैं? पहली बात तो ये है कि हमने कभी अपने आप को ना खुशी में कभी गुलब किया है और ना गम में कभी गुलब किया। अगर गम आए हैं तो उसमें भी सब्र और शुक्र किया है, और खुशी आई है तो उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया। तो कभी इतनी खुशी जो है ना जी, वो खुद पे नहीं चढ़ाई कि ना चाहते हुए भी कुछ बयान कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जो आप ये समझ रहे हैं, आपने दो जुमले इस्तेमाल किए हैं कि एक आपने कहा है कि यकजा हैं, और एक आपने कहा है कि आपके साथ कोई टीम आपको महसूस नहीं हो रही। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी एक प्रॉपर टीम है, प्रॉपर हमारा वर्क है, हमारे पास बेहतरीन लोग हैं और कारआमद लोग हैं और अच्छे लोग हैं, और उन्हीं के साथ जो है चलते हुए हमने पूरे मुल्क में बहुत बेहतरीन प्रोग्रामात मुनक़्क़द किए हैं। और जंग में भी अमीर अज़ीमत कॉन्फ्रेंस, हमने एक कामयाब तरीन कॉन्फ्रेंस जो नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस थी उसको मुनक़्क़द किया, और उसमें भी सारा काम जो है वो हमारी टीम ने सर अंजाम दिया। हमारे पास बेहतरीन लोगों पर मुश्तमिल एक टीम है और वो मुस्तकिल काम कर रही है, और हमें इस हवाले से, सियासी हवाले से हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई हमारे लिए मसाइल नहीं है। अल्लाह पाक का शुक्र है, हमारा शहर है, हम जंग के बासी हैं, मुद्दतों से वहाँ रह रहे हैं। हमारा लोगों के साथ मिलना जुलना, फैमिली के ताल्लुकात, उसके अलावा उनकी गमी खुशी में शरीक होना, और फिर बचपन से लेकर जवानी तक के ये सारे लम्हात वहाँ गुजरे हैं। तो हमें वहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिससे आपको ये समझे कि जी हमें कुछ सियासी हवाले से। अच्छा, एक चीज़ ये कि जो ताज़ा है कि देखे कि आपने अपने नाम के साथ ना एक लफ्ज़ का इजाफा किया, आपने किया या आपके चाहने वालों ने, कि ये पीर का लफ्ज़ आपने, और ख़ासतौर पर ईद पर तो फिर आपके मुरीदैन की जो है ना काफ़ी लाइनें भी लगी होंगी। तो ये जो पीर का लफ्ज़ आपने, क्या आप इस लफ्ज़ को सियासी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो आप गदी नशीन हैं या आपका पिछले ये चलता हुआ आ रहा है, ये दरमियान में आपने इसको स्टॉप कर दिया और दोबारा से कंटिन्यूस किया? पहली बात तो ये है कि मैंने ये जो लफ्ज़ है, ये आप चाहने वालों की अकीदत और मोहब्बत भी उसे समझ सकते हैं कि वो इसको इस कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि बाकायदा तौर पर उस सिलसिले को जिसके ज़रिए से आप जो है वो तरीक़त का रास्ता सीखते हैं, उसको प्रॉपर तय किया है, उन मनाजिल को तय किया है। और दूसरा, चूँकि एक फैज़ान है वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से भी, उनकी इस हवाले से भी एक मेहनत थी जो उनकी तारीख़ी ज़िंदगी की वजह से मंजर आम पर नहीं आ सकी, तो वो उस हवाले से भी एक हम उसको उजागर करना चाहते हैं। और दूसरा जो है कि ये बाकायदा एक सिलसिला है, ये कोई आज या कल की बात नहीं है या कुछ सियासी इसका मकसद नहीं है। अगर इसका सियासी मकसद होता तो हमतन इसी को ही इस्तेमाल किया जाता, लेकिन हमने हफ्ते में एक दिन बनाया हुआ है
जिस दिन बैठकर लोगों के मसाइल जो है ना जी वो उनको रूहानी हवाले से जो कुछ हम कर सकते हैं करना अल्लाह पाक की ज़ात में होता है, हम उसके लिए एक वो ज़रिया हैं आप कह लें, बाकी जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, आप नए नए पीर साहब भी बन गए और एक चीज़ बड़ी अजीब ये होती है कि इलाके के पीर जो है ना वो मानते नहीं है इतना जल्दी इलाके में नए पीर को, तो आपका क्या आपको आपके वहाँ के पीरों ने आपको कबूल कर लिया है? नहीं, जहाँ हम पीर हैं वहाँ हमारा कंपटीशन है ही नहीं, उसमें कंपटीशन हो तो कोई ना माने ना, तो ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ हमारे बहुत अच्छे जितनी भी जो गद्दियों के हजरात हैं उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात पहले से मौजूद हैं, और अभी भी मैं हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जो गद्दी नशीन हैं उनकी शादी में मेरी शिरकत थी, और बाकायदा उनके साथ उन्होंने सारा वो जो है इकराम किया, और अपने साथ ही जो है ना जी वो नशिस्त बर्खास्त भी की, और इस हवाले से कोई वो बात नहीं है। वो तो बल्कि मैं कहूँ तो मैं तो ये कहूँ आपसे पहले उन्होंने मान लिया है। नहीं, वैसे हमें ये मालूम है मोहब्बत और ताल्लुक की वजह से पीरों की तरफ से बहुत सपोर्ट है, और खास तौर पर इलेक्शन में जो है ना आपको भरपूर अंदाज से सपोर्ट भी करेंगे। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी, हमारी मोहब्बत है, हम अच्छाई से पेश आते हैं, उनके साथ एक अच्छा बर्ताव है, कभी हमने किसी भी हवाले से किसी की ज़ात को निशाना ही नहीं बनाया और ना बनाएंगे, तो एक मोहब्बत का ताल्लुक है और वो कायम रहता है। अच्छा, एक चीज़ ये अजीब लोग ज़ाहिर बात है ईद का दिन है तो ये जानना भी चाहेंगे कि आपके वालिद मोहतरम बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा कारनामा, और ये आज हम जो बैठे हुए हैं उन्हीं की मजलिस सजा के बैठे हुए हैं, तो ये मुझे बताइए कि ख़ास तौर पर आपने, अब मैंने तो बयान उनका आप पे ही सुना था कि बचपन में ही आपको छोड़कर चले गए थे, तो अगर आपने कोई उनके साथ ईद का लम्हा गुजारा हो तो कैसा दिन था और किस तरह वो अपनी ईद को जो है ना गुजारते थे? मुझे इस सिलसिले में याद नहीं है, क्योंकि मैं उस वक्त जो है वो 2 साल का था, तो 2 साल के बच्चे को तो कुछ याद नहीं होता, मुझे कोई वो लम्हा याद नहीं है जो उनके साथ वक्त गुजारा। बस वो वालिदा साहिबा ने जो बताया या बड़े भाइयों ने जो बताया वही बातें याद हैं, उसके अलावा मुझे तो मैंने उनके साथ तो मुझे ऐसा लम्हा याद नहीं है। अलबत्ता मुझे जो बुज़ुर्गों ने बताया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मतलब हज़रत पीर ज़ुल्फ़कार साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने, उनके बेटे ने मुझे ये वाक़या सुनाया कि हज़रत पीर साहब ने उनसे कहा कि वालिद मोहतरम मेरे लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते होते थे कि ये साहिबुस्सिजन है मेरा, यानी ये मेरा जेल का साथी है। तो वो इस हवाले से कहते थे कि जब वो उस दफ़ा जेल में थे, चूँकि हमारे जब भी भाई पैदा हुए हैं तो वालिद मोहतरम जेल में थे, तो उस वक्त भी वो जेल में थे जब मेरी पैदाइश हुई, तो उन्हें खुशी मिली, उसी खुशी में उन्होंने मेरा नाम भी मसरूर नवाज़ रखा। और उन दिनों में चूँकि एक वो औलाद के साथ एक वालिद का अपना एक ताल्लुक़ होता है, तो उस ताल्लुक़ की वजह से वो एक जो उनका एक प्यार था और एक वो याद थी, तो उस याद की वजह से वो ये कहा करते थे कि ये मेरा जेल का साथी। तो एक ये वो वाक़यात हैं जो हमें बड़ों ने बताए, वही याद हैं, बाकी तो मुझे तो कोई ऐसी बात याद नहीं है क्योंकि मैंने तो वक्त देखा ही नहीं अपने बारे में। अच्छा, पीर साहब ये बताइएगा कि अब आप जब ईद के दिन अपने अहले मोहल्ला अहले इलाका से मिलते हैं, तो अब आप उस मुकाम पे पहुंच गए जहाँ पे आपके वालिद साहब थे, तो कैसी कैफियत होती है जब लोग आपको मिलते हैं, और ख़ास तौर पर ईद का दिन जब होता है तो उस दिन आप किस कैफियत में और क्या, और एक होता है ना कि खुशी इंसान को होती है, तो किस चीज़ की खुशी होती है, अगर गम होता है तो किस चीज़ का गम होता है, तो आप इस हालत में अपने आप को किस अंदाज से अपने आप को सेटल करते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जी अमीर अजीमत अल्लामा हक नवाज़ शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें फ़ाइज़ फरमाया और जो दर्जात उन्हें अता किए और जितना बड़ा नाम उन्हें अता किया, मैं नहीं समझता कि मैं उस जगह पर पहुंचा हूं या पहुंच सकता हूं। वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत बड़ा नाम था। हम तो ये भी गनीमत है कि हम बतौर कारकुन ही उनको फॉलो करते हुए उनके नज़रियात की इशाअत के लिए कुछ खिदमत सर अंजाम दे सकें। तो ये तो बात जो है वो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि मैं उनके मकाम पर पहुँचा, मैं पहुँच ही नहीं सकता, और ना कभी ऐसी कोई कोशिश की और ना कभी सोचा, चूँकि जितना बड़ा वो मकाम उन्हें अल्लाह ने अता किया है,
ख्वाहिश यही रही कि उनके उस वक़ार को, उस नाम को उसी तरह ज़िंदा रखने की कोशिश करूं कि कोई ये ना कहे, किसी की ज़ुबान ये ना कहे कि कितने बड़े बाप का बेटा है और इसके अमाल जो है वो किस तर्ज पे। तो हमेशा कोशिश की कि अपने आप को अच्छे तर्ज के साथ लेकर चलें। बाकी जितने भी खुशियों के त्यौहार होते हैं, उन त्यौहारों पर एक सच है कि जिनके साथ गम बहुत बीते हुए हों, उनके उस दिन में भी कुछ गम ही इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उन्हें उस दिन कुछ यादें शिद्दत के साथ आती। और फिर हमने एक जो है इस हवाले से एक तरतीब भी है कि हम जिस दिन ईद होती है बिलखुसूस, तो हम वालिद मोहतरम की कब्र पर जो है वो हाज़िरी देते हैं। तो ईद की नमाज़ पढ़ के पहले वहाँ हाज़िरी देते हैं और उसके बाद जो है वो बाकी मामलात और काम करते हैं। तो इस हवाले से जो है वो उस दिन कोई एक्स्ट्रा, मैंने पहले भी आपसे कहा कि कभी भी ज़्यादा खुशी किसी चीज़ में गुलूफ करने की कोशिश कभी नहीं की। हमेशा एतदाल के साथ कोशिश की है कि ज़िंदगी गुजारी जाए। नाज़रीन, आपने देखा होगा, अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे। बहुत मुश्किल वक्त होते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे मौक़े जिस दिन तमाम बच्चे अपने वालिदैन के साथ उनका जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी उंगली पकड़ कर जा रहे होते हैं, और जो बड़े होते हैं तो जब ईद मिलने के बाद सबसे पहले जब वालिद को गले मिलते हैं तो लेकिन बहुत मुश्किल वक्त होता है। और ख़ास तौर पर हज़रत की जो बात कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, खुशकिस्मत होते हैं जो कुछ देख कर उनको फिर अरमान होता है, लेकिन कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं कि जिन्होंने तो उनकी मोहब्बत की एक झलक देखी भी नहीं। बहरहाल मज़ीद हम गुफ्तगू जारी सिलसिला रखेंगे। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मिलते हैं और बाकी अहवाल लेते हैं। मैं मुरीद जंग दा, मेरा पीर जंग दा वे। मैं मुरीद जंग दा, मेरा पीर जंग दा। मेरी सोच जंग दी, मेरी सोच जंग दी। मैं असीर जंग दा वे, मेरा पीर जंग दा। मैं मुरीद जंग दा वे, मेरा पीर जंग दा। सोना पीर जंग दा, सच्चा पीर जंग दा। उस आका दे साहबा उत्ते जान दिती है, उस आका दे साहबा उत्ते जान दिती है। रब सोने मेरे पीर नू क्या शान दिती है, रब सोने मेरे पीर नू क्या शान दिती है। मेरा पीर जंग दा, मैं मुरीद जंग दा वे। मेरा पीर जंग दा, सोना पीर जंग दा। मेरी सोच जंग दी, मेरी सोच जंग दी। मैं असीर जंग दा वे, मेरा पीर जंग दा। मैं मुरीद जंग दा वे, मेरा पीर जंग दा। सोना पीर जंग दा, सच्चा पीर जंग दा। मेरा पीर है ज़मीर दी पुकार दोस्तों, मेरा पीर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए अता फरमाए। निसार दोस्तों होया ये साहबा निसार दोस्तों। मेरा पीर जंग दा, मैं मुरीद जंग दा वे। मेरा पीर जंग दा, सोना पीर जंग दा। मेरी सोच जंग दी, मेरी सोच जंग दी। मैं असीर जंग दा वे, मेरा पीर जंग दा। मैं मुरीद जंग दा वे, मेरा पीर जंग दा। सोना पीर जंग दा, सच्चा पीर।